علیکم، میں ہوں ڈاکٹر مجاہد مرزا اور پڑھ رہا ہوں اپنی خود نوشت پریشاں سا پریشاں کی 12ویں قسط آپ کے لیے ابھی بچپن کے اعمال ہیں۔ ایک اور انقلابی قدم جو میں نے اٹھایا وہ یہ کہ ہمارے صحن میں محلے بلکہ شہر بھر کی عورتیں عید بقرعید کی نماز اماں کی امامت میں ادا کیا کرتی تھیں اور جاتے ہوئے 58 54 روپے والدہ کو دے دیا کرتی تھیں۔ میں نے 5ویں 6ٹھی میں ہی اس کے خلاف شدید آواز اٹھائی تھی، جس پر والدہ نے کہا کہ وہ اپنی خوشی سے عقیدت مندی میں دے جاتی ہیں۔ میری دلیل یہ تھی کہ نہ تو نماز پڑھانے کے لیے پیسے لیے جا سکتے ہیں اور نہ ہی یہ عقیدت کسی مسجد یا مدرسے کی تعمیر کا چندہ ہے، اس لیے اس قسم کے ہدیہ جات قبول کرنے سے قطعی انکار کیا جانا چاہیے۔ اماں میری بات مان لیا کرتی تھیں کیونکہ ان میں وزن ہوتا تھا، چنانچہ انہوں نے پھر عورتوں کو سختی سے منع کر دیا تھا کہ وہ انہیں پیسے نہ دیں۔ بچے کی آنکھ سے تب نہ وہ تینوں ولی لگتے تھے بلکہ ان کی زندگی اور ان کے رویوں میں پراسراریت محسوس ہوتی تھی، اور نہ ہی یہ تینوں عام انسان لگتے تھے کیونکہ وہ عجیب و غریب حد تک حیران کن تھے۔ وہ ویسے کیوں تھے اور یہ ایسے کیوں تھے؟ کبھی یہ سوچتا تھا، کوئی نقطہ مل جاتا تھا اور پھر بھول جاتا تھا۔ اگرچہ آج بھی میں کسی کی ولایت کی سند کا جواز نہیں ہوں اور کسی کو بس انسان کہہ دینا بھی ایسے ہے جیسے باقی ساری دنیا کے لوگ انسان ہی نہ ہوں، مگر پھر بھی مجھے وہ تینوں ولی لگتے تھے اور یہ تینوں انسان، وہ تینوں گم اپنی ذات میں یا اس کی ذات میں، تینوں ہی صبر و شکر کے پیکر اور تینوں ہی دوسروں کے لیے وسیلے، یہ تینوں بھڑکیلے اور نمائشی، بے چین اور مضطرب، تبدیلی کے خواہاں اور غیر مطمئن۔ چھوٹا قصبہ ویسے ہی مختصر ہوتا ہے، تقریباً سب ہی سبھوں کو یا کم از کم جانے کے قابل لوگوں کو ضرور جانتے ہیں۔ میرے بچپن میں وہاں کی آبادی 15-20 ہزار نفوس سے زیادہ نہیں ہوگی اور میرے نزدیک ولی کہلائے جانے والے پہلے شخص کو لامحالہ سبھی جانتے ہوں گے، مگر پھر ایسا ہوا کہ لگتا تھا جیسے سبھی اسے بھول گئے ہوں۔ یہ شخصیت پہلوان جی عبدالغفور تھے۔ 6.5 فٹ کا قد، گول چہرہ، سیاہی مائل گندمی رنگت، گٹھا ہوا سر، آنکھوں پہ بالکل ہی گول فریم کی چھوٹے شیشوں والی اینک، سفید تہمد اور سفید کرتا، پاؤں میں موچی کے بنے ہوئے عام دیہاتی خصے۔ اللہ نے پہلوان جی کو بہت دیا تھا، بے حد سادہ طبیعت کے درویش منش انسان تھے۔ ان کے کاروبار کا حساب یا تو ملا جی رکھتے تھے یا پھر ان کے شریک کار حکیم جی یعنی میرے والد صاحب۔ پہلوان جی کے نام کی 2 مساجد علی پور میں ہیں جو انہوں نے اپنی دیانتداری کی کمائی سے تعمیر کروائی تھیں۔ پہلوان جی کا گھر اسی حویلی میں تھا جو ملا جی کے گھر سے متصل تھی۔ اس کی راہداری سے گزر کر اونچی 3 منزلہ پتلی ٹائلوں سے چنی 2 رویہ عمارتوں کے بیچ ایک نسبتاً تنگ صحن تھا، جس کو ایک وسیع صحن سے ایک دیوار الگ کرتی تھی جس میں ایک دروازہ تھا۔ دروازے میں داخل ہوتے ہی بائیں طرف کی 1 منزلہ عمارت کے ایک حصے میں حبیب بما اپنے بچوں کے رہتا تھا اور دوسرے حصے میں پہلوان جی کا ایک بیٹا اپنے بچوں کے ہمراہ رہائش پذیر تھا۔ پہلوان جی کا یہ بیٹا گونگا تھا۔ دوسرا بیٹا نسبتاً تنگ صحن والے گھر کے ایک حصے میں رہتا تھا اور وہ بھی گونگا تھا۔ دونوں کی بیویاں بول سکتی تھیں۔ ان دونوں گونگوں کے نام مجھے یاد ہی نہیں تھے کیونکہ انہیں گونگا ہی کہتے تھے۔ یہ دونوں پہلوان جی کی پہلی بیوی سے تھے۔ تنگ صحن کے مکان والے گونگے کی ایک بیٹی کا نام ننھی تھا، حبیب کی بیٹی کا نام بولا یعنی مقبولہ، اور اس کے ساتھ متصل گھر والے گونگے کی بیٹی کا نام تنا یعنی خاتون تھا، اور یہ تینوں ہی میری ماں سے قرآن اور بہشتی زیور پڑھا کرتی تھی۔ تنا تیز سیانی اور سگھڑ تھی اور باقی دونوں پسڈی۔ بولا تو پھر بھی پڑھائی میں میری ماں سے کم مار کھاتی تھی، لیکن ننھی کا تو سر اماں نے دستی پنکھے کے ڈنڈی مار کے پلپلا کر دیا تھا۔ بولا اور تنا کے گھر کے سامنے 2 بڑے بڑے کمرے تھے جن کے آگے ستونوں والا سیمنٹ کے فرش والا برآمدہ تھا اور دونوں کمروں کا فرش بھی سیمنٹ کا تھا۔ ایک کمرے اس کی کوٹری میں پہلوان جی کی بیوی جو لہیم شہیم خاتون تھیں، سونے کے کڑے کانٹے اور بڑا سا ناک کا لونگ پہنے چارپائی پر پسر کے بیٹھنے والی ان کی بیٹی رہتی تھی۔ پہلوان جی بائیں طرف کے بڑے سے کمرے میں جس کی لوہے کے سریوں والی کھڑکیاں گلی میں کھلتی تھیں اور جو عموماً دروازے سمیت کھلی ہی رہتی تھیں، ایک بڑے سے پلنگ پر آلتی پالتی مارے بیٹھے ہوتے تھے اور وہیں سو جاتے تھے۔
वैसे तो वो अक्सर काम के सिलसिले में घर से बाहर ही होते थे। पहलवान जी बुनियादी तौर पर जंगल की लकड़ी को कुप के ज़रिए जलाकर कोयला बनाकर बेचने का कारोबार करते थे। इस कारोबार में मेरे वालिद के अलावा पहलवान जी के 2 भतीजे भी शरीक थे। पहलवान जी के भतीजे एक मंडी में बैठा करते थे जिसे पहलवान जी की मंडी कहा जाता था। ये तब के ज़माने में अलीपुर का सबसे बड़ा तामीरशुदा अहाता था। इसके बाद इस मंडी के नज़दीक ही लेकिन सड़क के दूसरी तरफ अंदर की जानिब मिर्ज़ाइयों की मंडी थी। वहाँ कभी कोई कारोबार होता मैंने नहीं देखा। वैसे भी वीरान सी जगह थी। हाँ, अलबत्ता कभी कभार वहाँ दंगल ज़रूर होते थे। पहलवान जी की मंडी में लकड़ियाँ और कोयला बिकता था। तीसरे नंबर की मंडी जतोई दरवाजे से अंदर दाखिल होकर बाएं जानिब एक गली में शेख याकूब की मंडी थी, जो बुनियादी तौर पर सब्ज़ी मंडी थी और जहाँ सब्ज़ी और फल हर सुबह बोली देकर बिका करते थे। पहलवान जी की नेकी और मेहनत का ही सिला था कि पैसे की रेल पेल थी। मुझे तो इतना ही याद है कि वालदा को जब भी ज़रूरत पड़ती थी वो अंधेरा होने के बाद हम में से किसी को साथ लेकर चली जाती थी और मुल्ला जी को जितना कहती थी वो दे देते थे। अमूमन तो कहलवा दिया जाता था और कोई ना कोई घर आकर पैसे दे जाया करता था। पहलवान जी के दोनों गूंगे बेटे भी बस मंडी में बैठे रहते थे। उनकी दूसरी बीवी जिन्हें हम मासी ही कहते थे, से फतेह नाम का बेटा पहलवान जी के साथ ही फील्ड में होता था। फतेह या फत्ता के चेहरे पे चकचके गहरे दाग थे। पहलवान जी ने जहाँ 2 मस्जिदें तामीर करवाई थी वहाँ वो गरीबों, यतीमों और बेवाओं की भी बिला नुमाइश मदद किया करते थे। पहलवान जी का नाम जिसकी भी ज़ुबान पर होता था उसके साथ जी का साबका उनकी सरवत की दलील नहीं बल्कि उनकी ताज़ीम की दस्तार थी। सादा लो, मुनकसर मिजाज और मध्यम बोलने वाले पहलवान जी सुना है किसी ज़माने में वाकई पहलवान हुआ करते थे। एक बार किसी सिख पहलवान से हार गए थे, उसके बाद वो कभी अखाड़े में नहीं उतरे थे। तस्बीह हमेशा ही उनके हाथ में होती थी, जिसके दानों पर वह हर फारिग लम्हे में कुछ न कुछ पढ़ा करते थे। अपने बेटों के गूंगेपन पर कभी तरद्दुद नहीं किया। हमेशा ही उसे रज़ाई इलाही जाना। उनकी अच्छी औरतों से शादियाँ की। तुन्ना की माँ कुरैशी तो बहुत ही सुघड़ और रख रखाव वाली औरत थी। नन्ही की माँ आम सादा सी औरत थी, घरेलू औरत थी। पहलवान जी के घर एक हंसने वाली हस्ती उनकी बेटी थी। पहलवान जी के ये दोनों बेटे अगरचे गूंगे थे लेकिन गुनी थे। सुना है उन दोनों ने एक बार मिट्टी के तेल का ड्रम, मोटर और पंखे जोड़कर उड़ने की कोशिश भी की थी और ज़ख्मी हो गए थे। गालिबन इन दोनों में से एक दर्जी का काम भी सीखा हुआ था। फतेह उनसे अनपढ़ था। पहलवान जी की ज़ात से किसी को भी कोई गज़न, कोई दुख नहीं पहुंचा था। वो बेहद नरम दिल वाक़ हुए थे। वालिद साहब ने उनके खुदा तरसी और सादा लोही का एक वाक़या सुनाया था। पहलवान जी को एक बार ज़राअत का शौक़ चुराया। मेरे बाप के मशवरे से उन्होंने ज़मीन आर्जी पटे पे ले ली थी। 2 एक मज़ारे रख लिए थे जिनमें एक का नाम हैदर था। पहलवान जी ने वहाँ कुछ सब्ज़ी बोआई थी, उसे कोई जानवर कुतर जाता था। उन्होंने एक दिन हैदर से पूछा, बेटा यह सब्ज़ी कौन खा जा? हैदर ने कहा, सही सीहड़ खावेंदन। मेरे बाप से उन्होंने पूछा, बेटा यह सीहड़ क्या हुआ है? अब्बा ने कहा, पहलवान जी ये खरगोश को सीहड़ कहते हैं। बस पहलवान जी को जलाल आ गया और उन्होंने हैदर को कहा कि खरगोश को पकड़ ले। 2-4 दिन में हैदर ने एक खरगोश पकड़ लिया और पहलवान जी को बताया। उन्होंने कहा, इसे मेरे पास लेकर आ। वो ले आया। पहलवान जी ने खरगोश को नरमी से हाथ ले दबा लिया और कहा, जा हैदर कपची लेके आ। अब हैदर के ना समझने की बात थी। उसने अब्बा से इस्तफसार किया, सही एक क्या आदे पेन? अब्बा ने कहा, जाके बहुत ही पतली सी शाख ले आओ। वो ले आया। पहलवान जी ने ये डंडा बहुत हौले से खरगोश के साथ मस करते हुए पूछा, तय फेर खाएगा? तय फेर खाएगा? तय फेर खाएगा? और कहा, जाओ इसे छोड़ दो। हैदर बेचारा हक्का बक्का छोड़ आया। उसका तो ख्याल था कि शायद खरगोश को ज़िबा करने का हुक्म होगा। जो शख्सियत एक ज़रा आसान जानवर को भी बस प्यार से इस्तफ़हामिया ज़ुबान में तंबीह करने के अलावा और कुछ नहीं कहती, उसकी ज़ात से भला किसी और को कैसे तकलीफ़ पहुँच सकती थी। पहलवान जी की एक मस्जिद उनके खुले दरवाजे और खुली खिड़कियों के बैठे के सामने गली के खात्मे पर, जहाँ जैलदार के घर का फाटक था, दाएं जाने मुड़ने वाली गली के दोनों अतराफ में दोनों जानिब थी।
दाएं तरफ की छोटी गली से दरवाज़ा मस्जिद में जाता था जहाँ नमाज अदा की जाती थी, और बाएं तरफ की गली का दरवाज़ा मस्जिद के जिस हिस्से में खुलता था वहाँ दीनी मदरसा था, जहाँ के तालिब इल्मों को पहलवान जी की खुशहाली रफा होने तक किसी घर से रोटी के टुकड़े नहीं मांगने पड़े थे। पहलवान जी ने दूसरी मस्जिद और मदरसा खैरपुर रोड पर हमारे घर के अक़ब से थोड़ी ही दूर दाएं जानिब की वसी जगह पर बनवाई थी। जितनी ज़्यादा गली वाली मस्जिद हर तरफ से छतें होने के बाद तारीख और नम थी, उतनी ही ज़्यादा खुली फिजा में होने के बाद ये मस्जिद रोशन और हवादार थी। बड़ा सा गोल सफ़ेद गुंबद, मीनारे और हाल, साथ ही मदरसा था जिसके बाहर की दीवार आधी पक्की ईंटों की थी और आधी की लिपाई सीमेंट से हुई थी। उसके पहलवान जी के बहुत अरसे बाद उस पर मौलवी मुश्ताक साहब ने कब्ज़ा कर लिया। मौलवी मुश्ताक साहब भी मरहूम हो चुके। अब ये मस्जिद पहलवान जी की बजाय मौलवी मुश्ताक का मदरसा कहलाती है। मस्जिद तामीर करवाने वाले इस दरवेश सिर्फ हस्ती ने अपने या अपने बच्चों के लिए कुछ भी नया तामीर नहीं करवाया था। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि कारोबार ठप हो गया, जिसका तज़किरा गुज़श्ता बाब में हो चुका है, और पहलवान जी घर बैठ रहे। पहलवान जी को तो लिखना पढ़ना भी नहीं आता था, जो मेरे बाप की तरह कोई उन्हें मुंशी बन जाने की ही दावत दे देता। बेटे गूंगे बहरे थे और तीसरा बेटा भी अनपढ़। गूंगे बेटे हथेली चलाकर लकड़ियाँ और दूसरा सामान ढोने लगे थे, और फत्ते या फत्ता पल्लेदार बन गया था। नौबत यहाँ तक आ पहुँची कि पहलवान जी लोगों से फ़ितरा और ज़कात भी वसूल करने लगे, लेकिन शुक्र इलाही की अदायगी उनकी ज़ुबान से हमेशा ही जारी रही। हालात तो हमारे भी अच्छे नहीं थे, लेकिन भाइयों के काम पे लग जाने से दाल रोटी चलने लगी थी। कभी कभार मेरी माँ पहलवान जी के घर जाती थी, चुपके से कुछ मासी के हाथ पर भी रखाती थी। मासी को बुरे हालात में मैंने चुपके आंसुओं से रोते देखा है, मगर पहलवान जी हर बात पे कहा करते थे, बेटे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, वो चाहे जैसे भी हालात में रखे। मेरी माँ घर आके उनकी बदहाली का तज़किरा करते हुए रोया करती थी, और साथ ही बहनों की आंखों से भी जड़ी लग जाती थी। यही अयाम थे जब एक बार मैं अब्बा के हमरा बाज़ार जा रहा था। बगाशेर बाज़ार में जो मास्टर सलीमुद्दीन की छतती हुई गली के अगले सिरे पर वाक़ था, और जिसके दोनों सिरों पर पहलवान जी की बिरादरी वालों की दुकानें थीं, आहिस्ता आहिस्ता कदमों से पहलवान जी जा रहे थे। वही लट्ठे का तहमद और कुर्ता, वही चमार के बनाए हुए देसी जूते, मगर जूते के चमड़े में दरारें पड़ रही थीं, और उनकी गोल पीतल के फ्रेम वाले आने के एक सिरे पर सब्ज धागा बंधा हुआ था, जो उन्होंने ऐनक को अटकाने की गर्ज से कान के गिर्द मढ़ा हुआ था। उनके हाथ में एक कुल्हाड़े का खाली फल था। वो बुलंद कामती की वजह से लगते थे जैसे लोगों के बहुत ऊपर देखते हुए चल रहे हैं। अब्बा ने खुश मिजाजी से पूछा, पहलवान जी आज किधर आ निकले? उन्होंने गोल शीशों के पीछे गोल गोल आंखों से देखते हुए कहा, बेटा घर में आटा नहीं है, सोचे कुल्हाड़े का फल ही बेच आऊँ। मेरे बाप के जिस्म पर तो जैसे कपकपी तारी हो गई। उन्होंने दोनों हाथों से पहलवान जी के हाथों से फल पकड़ते हुए बस बार बार इतना ही कहा, पहलवान जी आप घर चलें, पहलवान जी आप घर चलें। उनकी दोनों आंखों में दो मोटे मोटे आंसू अटके हुए थे, मगर पहलवान जी ने सब्र व क़नाअत की तस्वीर बने हुए मेरे बाप को तसल्ली देने के अंदाज में कहा, बेटा क्या हो गया, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अब्बा उनको तकरीबन खींचते हुए और यही कहते हुए, पहलवान जी खुदा के लिए आप अपने घर जाएं। उनको गली तक छोड़ उनके हाथ से कुल्हाड़े का फल लेकर तेज़ी से चलते हुए घर तक पहुंचे थे, और सर दोनों हाथों में लेकर बग़ैर आवाज़ निकाले बहुत रोए थे। मैंने अपने बाप की आंखों में वो दो आंसू और उनके इस तरह बाद में रोना पहली और आखिरी बार देखा था। अब्बा बहुत ही सख्त तबीयत के मालिक थे। जो ही उनका रोना थामा, वो एक झटके से उठे थे और गंदम की एक बोरी खुद ही अपनी कमर पर लाद कर पहलवान जी के घर तक ले गए थे। बाहर लोग देखते ही रह गए थे कि हकीम जी, जिनका हर काम या तो लोग करते हैं या उनके बच्चे, आज इस तरह कमर पर बोरी लादे कहाँ जा रहे हैं। किसी को पूछने की जरूरत नहीं हुई, सब दम साधे चहमगोयाँ ही करते रह गए थे। बोरी पहुंचाकर जब घर पहुंचे थे तो इज़्मिहलाल का मुजस्समा बने हुए थे, बोरी के बोझ से नहीं बल्कि तकदीर की सितम ज़रीफ़ी की चेहरा दस्ती से। पहलवान जी की बेटी तबीयत का शिकार होकर इलाज की कमी के बाद राहे मुल्क अदम हो गई, मगर पहलवान जी फिर भी शुक्र अदा करते हुए इस जहान फ़ानी से गए। अगर पहलवान जी वली नहीं थे तो और वली किसको कहा जाता।